Honorable Speaker, sir. Sir, I thank the Honorable Chief Minister Saab for giving a reply to the questions and points which were raised by me and my party. In particular about tabling the report of S.K. Sinha. I thank the Honorable Chief Minister Saab for that. And also about the work properties, the Honorable Chief Minister Saab has been kind enough to take up this issue once again tomorrow when we would be discussing about the minority welfare. Sir, we would be discussing about the work properties and we would come to some conclusion probably after tomorrow's discussion. But Honorable Speaker, sir, through you I would like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Saab is about the endowment land, sir. So tomorrow we would be discussing about Waqf. About endowment land, sir, I would like to recall and remind the Honorable Chief Minister Saab, and a year ago in December 2016, the state government has constituted a 5-member sub-committee to formulate the guidelines for regularization of endowment or temple lands. Sir, I would like to know what has happened and what are the findings of the cabinet subcommittee. And sir, I would also like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Saab is that, sir, there are 12,302 temples which are registered with Endowment Department, including 646 major temples, sir. Sir, however, there are 20,000 temples, including those not registered with the Endowment Department, sir. And sir, there are 5,000 big temples with land holdings, sir. Sir, it is a very shocking revelation which I had made yesterday is that, sir, the temples in Telangana has a total extent of 86,000 acres of land, sir. Out of that 86,000, sir, 56,000 acres of land have been encroached, sir. 56, sir. And out of this 56, sir, 16,000 acres of land has already been registered to the private individuals. So my submission and my request through you to Honorable Chief Minister Saab regarding the endowment land is that how we had second survey for Waqf lands, we can have a same survey done for the endowment lands also. And we should reconcile this and we should try to protect these lands. These are the temple lands and we need to protect, sir. And sir, second clarification which wasn't answered by Honorable Chief Minister Saab is about, sir, we had a discussion in this August House on lands and a joint committee was committees to go into issues of illegal sale, occupation, and House committee also was constituted, sir. It has been 3 years, sir. It has been 3 years House committee on illegal sale, occupation of government land was asked to look into encroachment, sir, in which endowments were there, Waqf was there, and also urban sealing and all. It has been 3 years, sir. We haven't completed the findings and nor we have submitted. Sir, through you, I would like to request to the government and as well as your kind self, sir, please tell the chairmen of these committees to call for a meeting, finalize the report and submit the report to the government, whatever the recommendations are. Sir, and thirdly about this GO 58 and 59, sir. So the Honorable Chief Minister Saab have given a reply and said that total application received in GO 58 were 3 lakhs change. Out of that, 1,25,000 were cleared. Sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to kindly call for the officers and review this situation about GO 58 and 59. Sir, you were kind enough and it was a historic decision where you took and said that 125 square yards would be regularized free of cost. But what has happened, sir? People have applied and they have not cleared those applicants, saying that they have structures of ground floor, 1 floor and 2 floor on that 125 square yards. And they have asked them to pay an amount of 10%. Sir,
सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि आपकी हुकूमत हर एक के लिए इतनी अच्छी है कि हर किसी का ख्याल करती है, बिलखुसूस गरीबों का। तो इस मसले में एक गरीब 125 गज की जमीन पे जिंदगी भर की पूंजी बचा बचा के कभी 2 कमरे बना लिया, कभी एक छत डाल लिया, कभी दूसरा छत डाल लिया, अगर उनको 10% दे तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो 10% भी देने के मौक़िफ़ में वो गरीब नहीं है। अगर होता तो वो 125 बेचकर चला जाता था। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि ये 125 पर ग्राउंड+1 को कम से कम रजिस्टर कर दीजिए, उसके ऊपर है तो नहीं करिए, उसके ऊपर के लिए पैसे ले लीजिए। तो इससे एक गरीब आप जिस मकसद के लिए जियो लाए वो कामयाब होगा। अबाउट जियो 59 सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जियो 59 में कई पेंडिंग है और उसमें जो इंस्टॉलमेंट्स की बात करें उसको भी रिव्यू करिए सर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि साहब ये जियो 59 के ताल्लुक से भी, इसमें भी पूरे पैसे जो हुकूमत का जो टारगेट था वो टारगेट को रीच नहीं कर सके सर। आपने अपने जवाब में कहा कि अभी 200 करोड़ आना है और उसमें से हुकूमत को 3 करोड़ रुपया आया है, आपने अपने जवाब में कहा, मैं अभी सुना उसमें। तो सर मैं ये चाहता हूं कि ये पैसा किस तरीके से जल्दी उड़ा सकते हैं। अगर 200 के बजाय अगर 150 भी आता है, अगर आज मिल जाए तो फायदा होगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस ताल्लुक से रिव्यू करिए। एंड लास्टली सर, very important and crucial, I've been fighting right from when Andhra Pradesh was there, is that sir it is very important कि साहब ये आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने, जब आंध्र प्रदेश था तो तेलंगाना की जमीन को लेफ्ट एंड राइट तकसीम किया, लेफ्ट एंड राइट तकसीम किया, और उससे जो पैसा आया उस पैसे को तेलंगाना पे नहीं लगाया, आंध्रा में लगाया। तो उसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए। ऐसी कितनी जमीनात दी गई है, किसको दी गई है, और जो पर्पस के लिए दी गई है क्या वो पर्पस सर्व हो रहा है। जैसा मैं एक ही मिसाल दूंगा सर, देयर इज अ डिस्प्यूट ऑफ हुसैन शाह वली वक्फ लैंड। गवर्नमेंट बोलती है उनकी जमीन है, वक्फ बोर्ड बोलती है और मैं बोलता हूं कि नहीं ये है। टीआरएस गवर्नमेंट भी कोर्ट को गई थी जब उस वक्त लड़ी उस मसले में कि नहीं ये वक्फ की आराजी है। सर देयर इज अ स्पेसिफिक जियो when the land was allotted to LANCO, they said for the development of IT sector. Geo never said for construction of residential apartments over there. So they have violated. There are many such violations which has happened and no action has been taken. So we need to look into this. And lastly sir, ये आंध्र प्रदेश जब था, जितनी औकाफी जमीनें थी इसको ये लोग गवर्नमेंट लैंड बोले, एंडोमेंट लैंड को भी कई जगह पे गवर्नमेंट लैंड बोले, और पट्टेजात तकसीम करते थे सब। कई एससीज को, एसटीज को और गरीब किसानों को पट्टे दे दिए, ओआरसीज दे दिए, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट लैंड है। अब जबकि कई कोर्ट्स के जजमेंट्स में सेटल हुआ कि गवर्नमेंट लैंड नहीं है, और आज आप जो क्लीनिंग कर रहे हैं इसमें अगर कोई पट्टेदार पट्टा सर्टिफिकेट लाता है, ओआरसी लाता है कि ये गवर्नमेंट मुझे दी है, और इसको अगर आप रेगुलराइज कर देंगे तो औकाफ और एंडोमेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आप इस मसले को कैसे हल करेंगे? क्योंकि वो गरीब भी जो लिया है ये समझ के लिया है कि हुकूमत ने दिया है तो ये साफ सुथरी जमीन है, लेकिन वो साफ सुथरी जमीन नहीं है। तो इस ताल्लुक से क्या करेंगे? तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप इस ताल्लुक से भी एक मीटिंग बुलाकर इस पर गौर करिए, क्योंकि हुक्मरानों, साबिक के हुक्मरानों ने तो उस गरीब को जमीन दे दी, वो गरीब उस जमीन पे काश कर रहा है या घर बनाया है या जो भी ज़िराअत कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है बरसों से, क्योंकि हुकूमत ने दी है। अब वही पट्टा ले जाएगा, बताएगा और उसका नाम आ जाएगा। अब फिर उसके बाद हमारे मुताले पर औकाफ और एंडोमेंट की जमीन को आप फिर से रिकंसाइल करेंगे, और जब पाया जाएगा कि यह जमीन वक्फ की है या एंडोमेंट की है तो वह गरीब का नुकसान होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा रास्ता तलाश करिए कि गरीब का भी नुकसान ना हो जो बरसों से उस जमीन पर है। जैसा आलेर की, हमारे आलेर में जो 1200 एकड़ जमीन है उसमें से 50-60 एकड़ के पट्टे दिए और लोगों के पास ओआरसी है, वहां पे काश्त हो रही है, तो वो किसान का क्या होगा? तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसान जो बरसों से
काश कर रहा है वो अपने हक से भी ना महरूम हो, वक्फ बोर्ड और एंडोमेंट भी अपने हक से ना हो। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं और इतना वक्त आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अकबर साहब को मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ये जो क्लीन अप हो रहा है रिकॉर्ड्स का, आपने सच कहा है, और काफी ज्यादा जमीन भी गलत इस्तेमाल किया गया, गलत बांटा गया। वैसे ही मंदिर के जमीनात के साथ भी काफी नाइंसाफी हुई। जैसा आप बता रहे थे कि 86,000 एकड़ में 56,000 हैज बीन इंक्रोच्ड और उसमें पट्टे दिए गए। Consecutive governments has taken a policy to issue बांटना, एनवायरमेंट्स लैंड्स भी बांटने का कुछ प्रयास किया, फिर बाद में कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से फैसला आया, तब रुक गया। ऐसा काफी मतलब बड़ा अजीब भी बातें हुई। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि एक बार ये क्लीनअप वाला मामला रूरल एरिया से आ जाए, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, एक दुख भरी बात यह भी है कि काफी जमीन लोगों ने डोनेट किया है स्कूल बनाने के लिए, दवाखाना बनाने के लिए, और कई चीज कहीं सब स्टेशन बन रहा है, कहीं बस शेल्टर बन रहे, कहीं क्रिमेटोरियम बन रहे, कहीं बरियल ग्राउंड बन रहे, सवाब के काम बोल के दिए लोग, उसका भी एंट्री बदले नहीं, उन्हीं के नाम पे है। इसी प्रकार से अब औकाफ जायदाद जमीन का भी इसमें आ रहा है, कहां वक्फ रिकॉर्ड है, कहां क्या है। मेरे ख्याल से ज्यादातर पर वो पार्ट बी में चला जाएगा, विच इज नॉट एबल टू, द अथॉरिटीज आर नॉट एबल टू डिसाइड देयर एंड देन। तो इसलिए कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एक बार ये रूरल वाला मामला आ जाए तो इसमें निकल के आएगा कि कितना औकाफी जमीन है, कितना मंदिरों के जमीन है, कितना क्या किया गया, फलाना क्या, पूरा आ जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी ऑर्डर दिया है उन लोगों को कि किस चीज के तहत कितने जमीन है, मतलब कोई चीज चुप नहीं सकता उसमें। आई विल शो यू, हो सके तो मैं कल आपको थोड़ा उसका अंदाजा भी बताऊंगा। आई आस्क द ऑफिसर्स टू प्रोड्यूस समथिंग, एटलीस्ट वन विलेज रिकॉर्ड, वन या एक या दो देखे तो हमको साफ समझ में आ जाए। कल कैसा भी हम लोग वक्त पे बात करने वाले हैं। मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि पूरा रिकॉर्ड ला लें, ये अवकाफी जायदाद जमीन का क्या मसला है, क्या है, एक बार इस बात पे पूरा ही तवज्जो देंगे। माइनॉरिटीज के मसाइल उनके साथ, वर्क लैंड्स का भी बहुत अहम बात है हमारे राज्य में, हमारे रियासत में। इसके लिए उसको एक खत्म पे लाना है, मतलब एक एंड, एक गुड एंड शुड कम टू दैट इशू। सो इसके लिए मैंने कहा है कल तफसील में उसके बारे में पूरा बात करेंगे। इंशाल्लाह मैं खुद रहूंगा कल, रह के उस बात को निपटाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, करंट के तहत कितने, सब स्टेशनों के नीचे, बस शेल्टर के नीचे कितने, स्कूल के नीचे कितने, रेलवे लाइन के नीचे कितने, कितना जमीन एक्वायर किया गया इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, इरिगेशन कैनाल के लिए, फील्ड चैनल के लिए। बड़ी अजीब बातें हो रही। वो रेडिया नायक साहब है, बहुत ही सीनियर कायद है असेंबली के, उनके पास लैंड एक्वायर किया गया, कैनाल बना दिया गया। स्पीकर साहब के भी कॉन्स्टिट्यूंसी है भोपालपल्ली, 25 साल पानी नहीं आए, नहर खोदे थे, पानी नहीं आ रहे तो किसान ने बस उसको भी नागर दिया, फिर उनके उसमें फील्ड में जमा हो गए। अजीब अजीब किस्से कहा नहीं। अभी जो लैंड एक्वायर किया गया उसका भी हिसाब किताब सीधा नहीं है, वो अभी निकल के आ रहा है। फील्ड चैनल के लिए क्या है, रेलवे लाइन के क्या है, नेशनल हाईवे के लिए क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, अच्छा बुरा पूरा आ रहा है। और टैंक बेड के नीचे कितना जमीन है, इसमें बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। मैं समझता हूं इससे काफी रोशनी इसमें आ जाए, काफी तफसील बातें हमारे एग्जामिनेशन के लिए आएंगे, तब हम लोग कुछ एक रास्ता बना पाएंगे सारे जमीनात के। एक अच्छी बात है ये। दूसरा, जो आपने जीओ 58 और 59 के बारे में जिक्र किया, हमने साफ उनको ऑर्डर दिया है जीओ 58 के तहत जो भी उस पर बरकरार है लोग, वो गरीब ही है, पहले झोपड़ी डाले होंगे, बाद में एक मंजिल या 2 मंजिल अपने कमाई से या कोई लोन लेके इधर उधर से बनाया होगा। मैं आपको आज भी कह देता हूं साफ से, 125 यार्ड्स पे वो कितने भी मंजिल रहो, क्या भी रहो, 100% दैट विल नॉट बी, दैट विल बी गिवन टू देम। उनके साथ पूरा इंसाफ होगा। अगर किसी जगह नहीं हुआ तो प्लीज ब्रिंग दैट टू माय नोटिस। कल आप कैसे भी हम लोग आ रहे, सेशन चल रहा है, प्लीज गिव मी द रिप्रेजेंटेशन, विल इश्यू इमीडिएट ऑर्डर्स, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज फार एज दैट इज कंसर्न। अनदर थिंग इज जीओ 59 में हमारे को मिलना था पूरा 530 करोड़, हमारे को मिला है 330 करोड़। ओनली 200 करोड़ ड्यू
That is due because the provision of installment was provided to the beneficiaries by the government itself. Those last installments are pending. I think very shortly even that is also going to come to a crux. Major money आ गया है, जिन लोगों को दिलचस्पी है उन्होंने पैसे दिया है, मुकम्मल वो लोग कैसा भी कर लेंगे, वो पैसे सरकार में आ जाएंगे, उसके बारे में कोई हमको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये 125 का तो कंप्लीट वेवर है, वो कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अभी मैं सीएस साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, पूरे आदेश उनको दिया जाएगा, वो कितने मंजिल भी रहो क्या भी रहो, उनको पूरा 125 के लिए तो दे विल बी एग्जेम्प्टेड इन टोटल, दे विल बी गिवन द राइट्स ऑफ दैट लैंड ऑन ए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस.